میں ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی میں کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اور ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، مسلمان غلط کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں اور بار بار وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں۔ ڈریے اسلامک کنٹریز سے کچھ نہیں کرتے، یہ صرف بولتے ہیں اور ان کے بولنے کا کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے خیال ہے ہندوستان میں اس پہ روک لگانی چاہیے، ورنہ ہندوستان کا بھی وہی حال ہوگا جو طالبان نے کر رکھا ہے یا جو پاکستان میں یہاں کے ملاؤں نے کر رکھا ہے۔ مدرسے بند کیجئے۔ جو دو وہ قاتل ہیں جنہوں نے اس درزی کو جو ہے وہ مارا ہے اور کتنا بروٹلی مارا ہے، ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو انڈین اتھارٹیز ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہاں میں جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ ہمیں حق ہے کہ ہم جناب جان کے مار دیں گے اس کو، کسی کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ انڈیا میں ہندو مسلمان سارے اکٹھے رہ رہے ہیں، بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر حالات یہ پیدا ہو جائیں کہ جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر ایک شخص نے کوئی یہ خاتون نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم قانون اور انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس بات پہ قتل و غارت شروع کر دیں اور کہیں جی کہ ہمیں حق ہے، تو یہ کوئی لاجک بھی نہیں ہے، نہ یہ قانون ہے، نہ یہ مذہب ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک غنڈہ گردی ہے۔ اس سے آپ اپنے مذہب کا جو نام ہے وہ بھی بدنام کر رہے ہیں۔ بھارت میں ادے پور میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم شدید طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں، کسی کی جان آپ نہیں لے سکتے۔ سخت کنڈیم کروں گا کہ کسی انسان کی جان جانا، میں تو کسی جانور کی جان کے تک کبھی نہیں سوچ سکتا کہ نہ کی جائے۔ اگر آپ کو نفرت سکھاتا ہے تو then you need to change your religion. This is not fair in 21st century. میں اس کو سیریسلی کنڈیم کروں گا۔ ہندوستان میں جس طرح سے میرے خیال کنہیا لال نام تھا اس کا، جو ایک جس کو مار دیا گیا اور دو مسلمز نے جو ہے ان کو جو بلاسفیمی لاگ کر کے اور بلاسفیمی کا شور مچا کر اور اس طرح سے جو ہے ویڈیو بنائی گئی اور مارا گیا اور جیسے کہنا چاہیے جان لے لی گئی۔ بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر، مگر ہندوستان کو سوچنا پڑے گا، ہندوستان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے یہاں اس قسم کے لوگ جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں تو آلریڈی اس طرح کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور پاکستان میں کئی لوگوں کی جانیں جا بھی چکی ہیں، جس میں ہمارے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر صاحب تک کا نام لسٹ میں ہے، اور ان کو مارنے والے ممتاز قادری کو لوگوں نے پھول پہنائے، پھول کی پتیاں نچھاور کی، اور یہاں تک کہ اسلام آباد جیسے شہر میں جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، وہاں پر اس ممتاز قادری کا ایک مزار بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جس کا بہت افسوس ہے۔ ایز اے مسلم مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ایز اے مسلم مجھے شرم آتی ہے اس قسم کی حرکتوں پہ جو مسلمان کرتے ہیں کہ دوسرے کی جان لے لیتے ہیں مذہب کے نام پہ۔ ہندوستان میں یہ چیز جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کچھ ٹائم سے بڑھتی جا رہی ہے۔ نپور شرما کے ایک ٹی وی ٹاک شو کے بعد جس میں ڈیبیٹ میں انہوں نے بات کی تھی، اس کے بعد سے یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بار بار اس کو روکنے کی ایسا لگتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے اور اس قصے کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ نپور نے اپنی طرف سے ایک سوری کا میسج بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ چیز تھمنے میں نہیں آ رہی۔ یقیناً کوئی لوگ ضرور ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ بات ختم ہو یا ہندوستان میں یہ بات جو ہے اس کو آگے نہ ڈسکس کیا جائے اور اس بات کو، اس کہانی کو کسی جگہ پر اس کا جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس پہ مزید ڈسکشن نہ ہو۔ اس لیے وہ بار بار نکل کر آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جگہ پہ جا کے بات کرتے ہیں اور دھمکیاں لگاتے ہیں سر تن سے جدا۔ یہ نعرہ جو تھا وہ ابھی تک نعرے کی شکل میں ہی کہا جا رہا تھا اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے، شاید لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن
उदयपुर में जो इंसिडेंट हुआ, एक मासूम इंसान की जान ली गई और बेशर्मी के साथ वीडियो बनाई गई और बताया गया कि हाँ जी हमने इसको मार दिया है और हम आइंदा भी ऐसा ही करेंगे और हम बाकी लोगों के साथ भी ऐसा करेंगे। पहले मौत की सजा होनी चाहिए, उनको चौक पे लटका दें। मुसलमानों में से ही हैं जिन्होंने उठकर ये काम किया है। ये कह देना कि ये हम में से नहीं है, ये तो मुसलमान ही नहीं है, तो फिर क्या है? वो बिल्कुल मुसलमान ही है और उन्होंने, वो आप में से ही है और हम में से ही है और हम में से ही उठकर उन्होंने ये काम किया है। तो वैसे साहब का ये कहना कि जी हम कंडेम करते हैं, वो हम में से नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं सर, वो आप में से ही है और आपको ये चीज माननी चाहिए और माननी होगी। और आपके इनकार करने से दुनिया को आप मजीद नहीं धोखा दे सकते। मगर साथ साथ उन्होंने कहा कि जी नुपुर को अरेस्ट नहीं किया गया। नुपुर को अरेस्ट किस लिए किया जाए? मुझे ये समझा दे कोई कि नुपुर को अरेस्ट करने का इतना शौक क्यों हो रहा है सबको। और एक चीज जो खत्म हो गई है, उन्होंने सॉरी भी कह दिया, हालांकि वो बात अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो जाहिर है वो ट्रांसलेशन पढ़ रही थी किसी हदीस के। मुसलमानों की किताबों में यही कुछ लिखा हुआ है, हमारी किताबों में यही कुछ लिखा हुआ है, तो फिर शिकवा किस बात का है? फिर किस बात की शिकायत है? फिर तो वो ठीक ही बता रही थी। लेकिन बात सारी ये है कि आपके नजदीक किसी की जान ले लेना जो है वो कोई खास बड़ी चीज ही नहीं है। उस बेचारे इंसान की जो है वो उदयपुर में उसकी जान ले ली और उसके बाद किस बेरहमी से, ऐसा तो कोई किसी जानवर को मार के भी नहीं करता कि वो इस तरह से वीडियो बनाए, कि वो इस तरह से बात करे, इस तरह से जिन चीजों से उसको मार डाला, उसकी गर्दन काट डाली, उसको ऐसे वीडियो बना रहे, उसको दिखा दिखा करके जी हमने ये कर दिया और हम आगे फिर यही करेंगे। ये कौन कौन सा मजहब आप फैला रहे हैं? ये कौन सी इंसानियत आप सिखा रहे हैं? मदरसे पाकिस्तान में बहुत मदरसे हैं और उनमें यही कुछ सिखाया जाता है और मेजॉरिटी में यही कुछ सिखाया जाता है। अगर उनमें से एक या दो ये दावा करते हैं कि हम नहीं सिखाते, तो वो झूठ बोल रहे हैं। और बाकी ये है कि पाकिस्तान वाले तो जाहिर हम इस्लामिक कंट्री है, हमारा तो यही काम है, हम तो इसी किस्म की चीजें करते हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मैंने किसी एक जगह भी ये नहीं देखा कि किसी ने बात तक की हो कि इस तरह से किसी हिंदू का या नॉन मुस्लिम का सर काट दिया गया और मुसलमान जो है वो ऐसे चौड़े होके बता रहे हैं जैसे कोई कारनामा किया है। किसी ने यहाँ से कंडेम नहीं किया, किसी ने यहाँ से ये नहीं बोला कि जी गलत हुआ है, अफसोस का इजहार नहीं किया। लेकिन अगर यही चीज किसी मुसलमान के साथ हुई होती तो हम तो जी सारे इस्लामिक कंट्री के जो है दादा बने फिरते हैं, हम तो सारे इस्लामिक कंट्री के माई बाप हैं। हमने तो शोर मचा दिया होता कि जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। और वो सारे लोग जिनको हर वक्त इस्लाम का जो जोश चढ़ा रहता है, हर वक्त वो मुसलमानों के ठेकेदार बने रहते हैं। इन दो मुसलमानों को भी अपनाइए, बताइए कि आप में से हैं, बताइए कि आपने यही सिखाया है अपने लोगों को, बताइए कि आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं है किसी की भी जान की। इस तरह से मार देने के बाद आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? कहाँ है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स? क्यों ये खबर नहीं दे रहे? मैं तो देख रही हूँ, 2 दिन से देख रही हूँ, एक टाइम मैंने नहीं देखा कि हमारे टीवी चैनल पे ये खबर चली हो। बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ, अगर जरूर किसी मुसलमान के साथ कुछ हुआ होता तो फिर सुबह से गले फाड़ रहे होते, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जाने की धमकियां दे रहे होते, फिर कह रहे होते हम तो पूरी ओआईसी को बुला लेंगे। और ओआईसी भी कहाँ है? वैसे तो ओआईसी भी चुप है और मैं तो हमेशा कहती हूँ ये ओआईसी किसी काम के नहीं है। किसी, अगर ये मुस्लिम कंट्रीज की मदद के लिए है तो ये वो भी नहीं करते। हम बड़े गैरत वाले बनते हैं और सारे वक्त हम कभी आईएमएफ के सामने हाथ फैला के खड़े होते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ फैला के, कभी चाइना से मांग रहे होते हैं। किसी मुस्लिम कंट्री के आगे अगर कभी जाते भी हैं, जैसे सऊदी अरब या कहीं, वो कहते हैं देखो पैसे रख तो लो बैंक में, हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़ देंगे तुम्हारे। तो बस वो देखने के लिए वो पैसे रख देते हैं हमारे पास, उसके बाद हम उन्हें खर्च नहीं कर सकते। और आफरीन है इन तमाम काफिरों के ऊपर जो हमें पैसे देते हैं और हमें इजाजत भी देते हैं कि हम जैसे मर्जी चाहे उड़ा दें, जैसे मर्जी हम कॉर्नर के प्लॉट ले लें, चाहे हम फ्लैट खरीद लें, चाहे हम कनाडा अमेरिका में प्रॉपर्टीज बना लें। ये बेचारे उफ तक नहीं करते। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज वाले क्योंकि जाहिर है कि अब वो नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा, तो वो कहते हैं कि जी पैसा ले लो, बहुत मुश्किलों से दे तो देते हैं, पैसा ले लो लेकिन उसके बाद उसको टच करने का नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अब ये सब लोग कहाँ हैं? इनकी आवाज क्यों नहीं निकली और इन्होंने क्यों कंडेम नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये गलत हुआ है? और इन्हें कहना चाहिए, लेकिन सब चुप है।
पाकिस्तान भी चुप है, पाकिस्तान की तरफ से भी किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं गया। जैसे मैंने कहा, तमाम टीवी चैनल्स भी खामोश हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा। लेकिन खैर, हमें तो मालूम होना ही चाहिए था कि ऐसा ही होगा, और हैरान भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल है अगर हम यहाँ से किसी किस्म का ऐसा स्टेटमेंट दे देते कि जो उनके फेवर में जाता है हिंदुस्तान के, या उस बेचारे इंसान की जिसकी जान चली गई, अगर उसके फेवर में चला जाता, तो शायद हमें हैरान होने की जरूरत थी। लेकिन इस वक्त हमें हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं फिर यही कहूंगी, बहुत अफसोसनाक वाकया था, और अगर हिंदुस्तान चाहता है कि इन चीजों को रोके, तो आपको सख्त इकदाम उठाने होंगे। कोई ना कोई आपको स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना होगा। इनको सख्त से सख्त सजा देनी होगी। मत डरिए, इस्लामिक कंट्रीज से कुछ नहीं करते ये सिर्फ बोलते हैं, और उनके बोलने का किसी को कोई असर नहीं होता, इसलिए कि सबको मालूम है ये क्या कर रहे हैं। मैं एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, मुसलमान गलत कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और बार बार विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ शर्म कर लीजिए आप लोग। आखिर आप अपने ही मुल्क की जड़ें क्यों काट रहे हैं? आप आखिर क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे आपके मुल्क का नाम खराब हो रहा है? और ये दो लोग जिन्होंने जान ली है कन्हैया लाल की, जो उदयपुर में, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और ये कहना बंद कर दीजिए ये हम में से नहीं है, क्योंकि ये हम में से ही है। हमने ही इन्हें क्रिएट किया है, और हमने ही इन्हें ये सिखाया है, और हमने ही इन्हें भेजा है, और हमने ही सब कुछ किया है। ये चीज मुसलमानों को माननी पड़ेगी। वरना ये कह देने से कि कोई मुसलमान किसी को मार दे, जान ले ले, और कह देते जी ये हम में से नहीं है, ये वाली नौटंकी जो है ना, ये मजीद नहीं चलेगी। ये लोगों को अब समझ में आ गया है। मेरे ख्याल है हिंदुस्तान में इस पे रोक लगानी चाहिए, वरना हिंदुस्तान का भी वही हाल होगा जो तालिबान ने कर रखा है, या जो पाकिस्तान में यहाँ के मुल्लाओं ने कर रखा है। मदरसे बंद कीजिए, लोगों के जहन में जहर भरना बंद कीजिए।